ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تو یہ مہینہ ہم سب کے لیے بہت ہی بابرکت ہے، اور اس بابرکت مہینے میں دیتے ہیں دید خوابوں میں جنہیں آپ کرا دیتے ہیں، زندگی کے سبھی غم ان کے بلا دیتے ہیں، اور جو بھی مشغول گناہوں میں رہے ہوتے ہیں، جو بھی مشغول گناہوں میں رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے نصیب آپ جگا دیتے ہیں، اور آپ کے در پہ جو ٹھکرائے ہوئے آتے ہیں، آپ کے در پہ جو ٹھکرائے ہوئے آتے ہیں، درد و غم ان کے سبھی آپ مٹا دیتے ہیں۔ اور شعر ہے کہ دیکھنا چاہے جو انسان کی عظمت دنیا، دیکھنا چاہے جو انسان کی عظمت دنیا، ایک جھلک آپ کی سیرت کی دکھا دیتے ہیں، اور آپ کے در کی گدائی کا صلہ ملتا ہے، آپ کے در کی گدائی کا صلہ ملتا ہے، مانگنے والوں کو سلطان بنا دیتے ہیں۔ اور میری نظروں میں ہے طائف کا وہ منظر ساحل، میری نظروں میں ہے طائف کا وہ منظر ساحل، سنگ باری پہ بھی آپ ان کو دعا دیتے ہیں، دید خوابوں میں جنہیں آپ کرا دیتے ہیں، زندگی کے سبھی غم ان کے بلا دیتے ہیں۔ شکریہ۔ کے ساتھ ایک بہت ہی المناک حادثہ پیش آیا ہے ویلنسیا میں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی جو حادثہ میں سانحہ میں وفات جمیل عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمارے دوست ہیں جناب لقمان مرشد صاحب، ان کے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ان کا گھر جو ہے میرے خیال سے تحصیل کھاریاں کے جتنے بھی دوست ہیں، ہم بھائی صاحب جو رہنے والے ہیں، سب کے لیے ان کے والد محترم، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا معتبر نام ہے۔ ان کی کاوشیں جو ہے جماعت کے ساتھ بھی، اس کی وابستگی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال سے میرٹ کے اوپر ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ پارٹی پالیسیز کی وجہ سے اگر یہ کنٹیسٹ نہیں کر سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جو سرگرمیاں ہیں، اپنا جو اپنے دوست بھائی علاقے کے جو مطلب ہم سارے جو ہے ان سب کے ساتھ جو ہے اپنا ایک گھریلو تعلق جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ آج بھی ماشاءاللہ پہلے سے مضبوط جو ہے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک ہفتے سے یہاں ان کی محبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہماری محبت ہے کہ جو مسلسل ان کے لیے جو دوست ہے وہ پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں، اور جو نئے دوست ہیں ان کی خواہش ہے بہت سے جو کام میں سوشل کارناموں میں بھی ماشاء اللہ ایسا بہت بڑا نام ہے۔ عامر کا بہت شکریہ جو آپ تشریف لائے، اور آپ نے اپنے مہمان کو جو عزت دی اس کا آپ کا دل کے تھکائیوں سے یہ ساری تقریب کے جو میزبان ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے مہمان اسپین جناب شراز بھٹی صاحب کو اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح کا جبر چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس ملک میں جمہوریت ہوگی، جس ملک کا عام بندہ پڑھا لکھا ہوگا، سیاسی اور جمہوری سوچ رکھتا ہوگا، اس کے اوپر لمبے عرصے کے لیے جبر نہیں چل سکتا۔ پاکستان کا ہر شہری اور بالخصوص پاکستان کا نوجوان آج انتہائی باشعور ہے، اپنا فیصلہ اور بہترین فیصلہ کر سکتا ہے۔ اپنا فیصلہ اس نوجوان نے پاکستان کے شہری نے دیا بھی ہے، اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں پھر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ جو فیصلہ کریں، اس فیصلے کو ضرور عزت دینی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، یہ وہی ووٹ ہے، یہ وہی فیصلہ ہے جس کو عزت ملنی چاہیے، اور اسی سے قوم کا مستقبل بہتر ہوگا۔ اگر آج کسی ایک فرد کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو اگر وہ اچھا کام نہیں کرتا تو قوم جو ہے اس کو مسترد کر کے کسی دوسرے بہتر بندے کو لے کے آئے گی، اور اسی طرح قوموں میں
बेहतरी आती है। मैं पाकिस्तान से जब आ रहा था तो मैं ओवरसीज दोस्तों के वाले से मैं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा, यहाँ से जो दोस्त पाकिस्तान में हैं मायूसी की बातें करते हैं, जो बाहर से फ़ोन करते हैं वो भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने फैसला किया कि मायूसी की बात ना आप करें ना हम करें, मायूसी करनी कोई नहीं, और इंशाल्लाह हमने बेहतरी की तरफ जाना है। सबसे अच्छी बात ये है कि ओवरसीज में जितने आप लोग दियारे गैर में मुकीम हैं, ये पहले भी मैं इसका बरमला इजहार करता हूँ, अपने मुल्क की मोहब्बत जो आप लोगों में शायद हम पाकिस्तान में रहने वाले इस शदीद मोहब्बत में मुबतला नहीं है, जिस शदीद मोहब्बत में आप मुबतला हैं। और इंशाल्लाह आप सबकी कोशिश से, आप सबकी बदौलत बेहतरी आएगी और हम सब एक अच्छा खूबसूरत और बेहतर पाकिस्तान जो है वो जरूर देखेंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे। मैं आप सबके दोस्तों का फिर मशकूर हूँ और आप सबको फिर यहाँ पे वक्त निकालने पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तकरीब इस वाले से मैं समझता हूँ कि जो एक हादसा, हमारे ही वो भाई हैं जो एक हादसे में इस दुनिया से चले गए, यकीनन वो शहीद हैं और शहीद का बहुत बड़ा मुकाम है। रिज़्क़े हलाल के लिए वो इस मुल्क में आए, रिज़्क़े हलाल के लिए तकद्दो कर रहे थे, तो उनको मौत का वक्त उनका आ गया। आज की तकरीब मैं समझता हूँ कि एक हमारी फ़ज़ा भी सोगवार है, ये उस तरह की तकरीब नहीं है, लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करें और उनके लवाइकीन को सब्र जमील दे। मैं अब तमाम जितनी हमारी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, मैं आप तमाम कम्युनिटी को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए बैरून मुल्क बैठकर खिदमात सरंजाम दी हैं और दे रहे हैं। आपका पाकिस्तान भेजो ज़र्रे मुतबादला ही पाकिस्तान का निज़ाम जिंदगी चलाता है। आप जो मेहनत यहाँ पे करते हैं उसका समर पाकिस्तान में बैठे लोग उसके समर से मुस्तफीद होते हैं और ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान के हालात शायद आप सोचते हो कि तब्दील नहीं हो रहे, लेकिन मायूसी कहते हैं हमारे दीन में भी मायूसी गुनाह है। ये मुमलकत बहुत नशेबो फराज इसने देखे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन है कि इस मुल्क ने आगे जाना है और इंशाअल्लाह ये इस्लाम के नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर ये मुल्क बना है और इंशाअल्लाह इस मुल्क ने आगे जाना है। वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मुल्क को अगर इन 78 सालों में इस मुल्क का इतना नुकसान करने के बाद, इतनी करप्शन करने के बाद अगर ये मुल्क आज भी दुनिया में एक एटमी ताकत के तौर पर मौजूद है तो इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में इसको तरक्की करता देखेंगे। पार्टी की कुछ पॉलिसी होती है जिसका हमें बेहद अफसोस भी होता है कि दरीना साथियों को इग्नोर कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि हक बनता था भाई नासिर का, जिनकी मेहनत थी, जिनकी कोशिश थी। मैं तो जिधर भी बैठता हूँ अपनी पीटीआई की मेन लीडरशिप में भी, मैं भी वहाँ भी एक ही बात करता हूँ कि यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जो लोग बुरे वक्त में आप लोगों के साथ चले हैं, आप अच्छे वक्त में उनको क्यों भूल जाते हैं।
ठीक है। जिस वक्त कोई बंदा नहीं जाता होता था उस वक्त ये सारे लोग गाड़ियां लेके हम सब तमाम लाहौर जलसों में आगे पीछे जाते थे, खर्चे अपनी पकड़ से ले करते थे। मतलब इन लोगों की काबिज थी कि इन्होंने अपनी तहसील में पीटीआई को मतलब है ज़िंदा रखा, और मैं इनको आज भी मैं समझता हूँ कि मेरी कदर और बढ़ गई है। पार्टी ने बारहा दफ़ा इनको इग्नोर किया, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। सच गया है भाई नासिर अहमद छपर साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए, आज एक वीक हो गया है, डेली हम कहीं ना कहीं रोज़ बैठते हैं, एक मिल बैठने का बहाना होता है। तो मैं समझता हूँ कि नासिर भाई के साथ पीटीआई में मेरा सबसे पहले ताल्लुक़ इनके साथ था। अपने इलाके में मेरा सबसे पहले ताल्लुक़ इन्हीं के साथ था। हम पार्टी के लिए मुख्तलिफ जगह पे इकट्ठे भी जाते रहे, जलसे में भी जाते रहे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला हर प्लेटफार्म पर जानी माली हर किस्म का मेरा तावन आज भी इनके साथ है, पहले भी था और आइंदा भी रहेगा। हमें बहुत अफसोस है, वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई थे, पाकिस्तानी फैमिली है, मतलब है कि वो भी रोज़गार के सिलसिले में आए थे, लेकिन नहीं पता कि ज़िंदगी यहाँ के ख़त्म हो जानी है। तो मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी वलेंसिया को भी के साथ भी अफसोस का इज़हार करता हूँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम पहले ऐलान हो चुका था, नहीं तो हमें आज दावत थी, हमने वहाँ जाना था, लेकिन नहीं जा सके क्योंकि हमारा प्रोग्राम पहले से तय था ये। तो मैं समझता हूँ कि आज हमने उनके लिए यहाँ दुआ करवा कर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके लिए दुआ करेंगे। एक और हमारे भाई हैं पाकिस्तान में, लुकमान साहब, उनके आज वालिद की डेथ हुई है। मैं लुकमान भाई से भी और अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी बार्सिलोना की तरफ से अफसोस करता हूँ कि ये निज़ाम कुदरत है, अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, जो दुनिया में आया है उसने जाना है, हम लोग अफसोस ही कर सकते हैं। तो मैं तमाम भाइयों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया जी। कुर्तुबा रेस्टोरेंट सांता आदिया दे बेसोस, 3 बड़े हॉल, 350 से ज्यादा अफराद के बैठने की पुरसुकून जगह, सालगिरह, शादी और सियासी तकरीबात के लिए मौजू हॉल, आपकी पहुंच में आसान, मेट्रो नंबर 2 के स्टॉप आर्टिगस सांता आदिया के बिल्कुल करीब। एशियन खानों का ऐसा मयार कि आप बार बार आने पर मजबूर हों। बच्चों, बड़ों और फैमिलीज के लिए पुरसुकून जगह, कोयले वाली मुर्गी, बिरयानी, बकरे की रान, पूरा ब्रोस्ट बकरा और जो आप चाहें। कुर्तुबा रेस्टोरेंट सांता आद्रिया दी बेसोस आपका अपना रेस्टोरेंट। फोन पर ऑर्डर करें, खुद आए, एशियन खानों का मजा लें।